Hello students. So today we are going to start with the first chapter of physics, that is light, reflection and refraction. Now the title of our chapter is light, reflection and refraction. That means it is clear that we in this chapter we are going to learn about light, and specifically the two phenomenon that light shows is reflection and refraction. Now before starting that, what has been given in the chapter and what are the basic topics of this chapter, we'll start with the title of the chapter only, that is light. Okay, so let me ask you the question that what do you mean by the light? You all have to comment about the definition of the light in the comment box. I'll see that if I'm telling you the word light, or if you are thinking about the light, that what comes in your mind. Okay, so there are actually several definitions of the light. It's not like if I'm writing or if I'm explaining you this definition, then this will be the whole soul definition. No, light can be defined in the several way and as per the level. Means right now suppose you are in class 10, so the light of the definition is something different. If you'll be moving to class 11 to class 12, then in physics you'll find the definition of the light something different. If you are studying the light, about light in the smaller classes like in class 7th, like in class 8, then there will be then definition might change. But see, the property of the light doesn't change, and as per the classes we define light and we learn about the phenomenon that light shows. Okay, now let me tell you that why we are starting with the light only, or why the physics has been started with the first chapter, light. If you see around you, then you will realize that you are able to see the object or the beauty of the world just because of the light. Okay, light is there. The light goes under several phenomenon, and due to this phenomenon only you are able to see the object, the rainbow, then the twinkling of the star, then the sky is blue. So these things you are able to see, you are able to cherish the beauty of the world. The beauty around you is just because of light and the phenomenon that the light shows. So basically in this chapter, actually light shows the several phenomenon, but in this chapter we are going to learn the two major phenomenon that light shows. ठीक है, लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कुछ फिनोमिनन मतलब कुछ प्रोसेस से जाती है. जब वो प्रोसेस क्या कहते हैं फॉलो करती है तो हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं. ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है वो क्या है, वो ये है कि आप इतनी सुंदर दुनिया देख पाते हैं, आप इतने कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, आप इसकी ब्यूटी को चेरिश कर पाते हैं. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइट. सो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद द लाइट एंड with the two major phenomenon that it shows, that is your reflection and refraction. So if I want to define, yes, the very first question that I had asked you about the light is what actually the light is. Now as per the simplest definition, अगर जो अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि लाइट की वजह से हम देख पाते हैं चीजों को, तो अगर उसी को हम अच्छे से वर्ड में सजा के लिख दें तो डेफिनेशन ऑफ लाइट इज व्हाट इट इज. It's a source of energy which enables us to see. Simplest one. लाइट क्या है? लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, चीजों को देख पाते हैं. अब चीजों को देख पाना दैट इनेबल्स अस टू सी. ये जो चीजें इनेबल्स अस टू सी, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया द रेनबो यू आर एबल टू सी, दैट मीन्स द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आपको जो दिखता है झपक 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 आपके स्टार्स रहते हैं और वो ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं. तो ये सारी चीजें जो है मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ चेयर रखी तो मैं चेयर को देख पा रही हूँ, या मेरे सामने कोई विंडो है तो मैं विंडो को. इट्स अबाउट ऑल द नेचुरल फिनोमिनन दैट यू आर सीइंग अराउंड यू. मैक्सिमम फिनोमिनन आर ड्यू टू द लाइट. ओके, तो लाइट एक तरीके की क्या है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो हमको हमारे
आसपास की जो चीजें हैं उन्हें देखने में क्या करती है, मदद करती है, या हमें प्रोवाइड करती है कि हम चीजों को देख पाए, ठीक है. दिस इज साउंड एनर्जी. इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड अबाउट द साउंड एनर्जी. दैट साउंड एनर्जी enables us to hear the things, okay, to hear about the things. So this is what this is also, this enables you to see the object around you or the phenomenon, the things that are going around you, okay. Now as I told you that in this chapter we are going to learn about the phenomenon, that is the process the light shows, ठीक है. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि लाइट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, और वो जो प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है उस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होता है उसका फिनोमिनन. बहुत सारे फिनोमिनन में जाती है. मैं यहाँ पे 4 फिनोमिनन डिस्कस, मतलब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और मेजरली तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. बट ये 4 फिनोमिनन जो हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी, दीज आर द 4 different phenomenon that light shows, okay. But it is not like these are only the 4 phenomena. No, it's not like that. Light shows more than this, or it undergoes some other processes also. But right now अभी आप 10th level पे हैं, तो ये 4 के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा जानेंगे. बाकी ये दोनों के बारे में तो हम काफी कुछ जानने वाले हैं, बट इन दोनों के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा अभी मैं डिस्कस करूंगी, जिससे आपको पता तो चल जाए एटलीस्ट कि क्या है, ठीक है. सो रिफ्लेक्शन, I don't have to explain much about the reflection because you people have studied a lot about reflection in the previous classes also, and obviously we are going to elaborate these 2 phenomena in this chapter. So reflection of the light, but still reflection of the light is what, when the light falls on an object. You have seen, suppose कुछ भी आपके सामने ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पर लाइट जाए और फिर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट. आप कोई भी चीज को देख रहे हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. ये एक प्रोसेस है जो लाइट शो करती है, ठीक है. फिर लाइट दूसरा जो प्रोसेस शो कर सकती है या फिनोमिना, दैट इज रिफ्रैक्शन. वो भी हम पढ़ेंगे. भाई चश्मा आप लगा लेते हैं, नंबर वाला चश्मा देखते हैं ना, फिर नंबर वाला चश्मा लगाने के बाद आप चीजों को देख पाते हैं, तो वो किस चीज से, वो किस फिनोमिनन से हो पाता है, वो आपका रिफ्रैक्शन की वजह से हो पाता है. या मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर हम कोई भी चीज को देख रहे होते हैं कि भाई बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, मतलब छोटी चीज है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर हम बड़ा बड़ा देखते हैं, तो बीच में लेंस आ जाता है. हमारी आंखें हैं, लेंस है, फिर एयर है, मतलब स्पेस है, फिर कहीं जाके हम चीजों को देख पा रहे हैं, तो वो भी किसकी वजह से हो पाता है, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूंगी, जब हम ये प्रोसेस लेंगे, ये फिनोमिनन लेंगे, तो इसे और डीपली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि रिफ्रैक्शन, दैट इज basically we are able to see anything through the lenses, okay. This is reflection, that is through any object, if the light is coming back, so we are able to see that particular object. Now the third one is dispersion. Dispersion, आपको पता है, dispersion of light, we are able to see the rainbow, the 7 colors of the rainbow. You all know that, might be you have experimented about that if there is a prism and I'm passing a white light from one corner, then it will be dispersed into its 7 colors. So this is what about the dispersion. Dispersion में क्या होता है, your light gets dispersed, it gets fragmented into 7 colors, okay. तो वो 7 कलर्स एक तरीके की क्या होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है. वो आप पढ़ेंगे आगे चलकर, या किसी को फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बारे में समझना हो, आई थिंक आपने 9th क्लास में साउंड में भी पढ़ा होगा, तो वो चीज भी आपको पता चल जाएगी. सो दैट इज व्हाट डिस्पर्शन क्या होता है, दैट इज व्हेन अ लाइट गेट फ्रैगमेंटेड इनटू इट्स 7 कलर, ओके. सो दैट इज द डिस्पर्शन. नाउ द फोर्थ वन इज डिफ्रैक्शन. This is actually, I think you might have studied this phenomenon for the first time,
that has been shown by the light. You'll be studying this in the higher classes, either in class 12th physics. लेकिन इसका एक एग्जाम्पल, मतलब डिफ्रैक्शन अगर आपको थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दूं, तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक अंधेरे रूम में बैठी हूँ और बीच में दरवाजा है और दरवाजे की दूसरी तरफ भी एक रूम है जहाँ पे लाइट जल रही है। तो और जो दरवाजा है वो पूरी तरीके से मतलब दरवाजे और फ्लोर के बीच में थोड़ी थोड़ी क्या है, जगह है। उस जगह से आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि बाजू वाली रूम में क्या है, लाइट जल रही है। तो ये जो फिनोमिनन है जिसमें क्या हो रहा है कि लाइट एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में पास होती है, लेकिन बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो वो जो स्ट्रेट लाइन से पास हो रही होती है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जैसे मतलब लाइट आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या है, बीच में दरवाजा आ गया है। दरवाजा आने के कारण लाइट ऐसे तो क्या होगी, अब तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दरवाजा एक सरफेस आ गया, लेकिन नीचे जो स्पेस है, मैंने आपको कहा कि फ्लोर और दरवाजे के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, तो यहाँ से क्या होगी, लाइट ऐसे पास हो जाएगी। तो ये क्या है, ये जो है, जो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है और वो ओपेक ऑब्जेक्ट जब लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब ऐसे उसको क्या करता है, रोक देता है, फिर भी लाइट जो है कहीं ना कहीं स्पेस और ढूंढ के जो निकल जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी बॉदर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिफ्रैक्शन वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास ऑब्वियसली। ओके, तो ये जो है जिसकी वजह से हम एक जगह होते हैं लेकिन दूसरी तरफ से हमें दिख रहा होता है कि भाई लाइट आ रही है, उसका कहीं सोर्स है, so that is due to the diffraction. Okay, so this is what all about the light and the phenomenon. In the next lecture I'm going to start with the reflection. Okay, so be prepared. We'll be discussing about the reflection in a proper way in the next lecture. Thank you.